Today we have to learn about a SLO from writing competency. It's our lecture 7 from unit 5, and according to our book it's lecture based on the competency of writing, and today we will learn about the paragraph writing. So let's look at the SLO. Write multiple paragraphs of free writing for fluency, creativity, brainstorming or pleasure. So there are multiple keywords in our SLO. Firstly, we have to learn to write paragraphs, multiple paragraphs on the same topic, and then what we have to learn? We have to learn why we write the paragraph, why we write paragraph, what is the purpose of writing a paragraph. The first purpose is to learn write freely for fluency, and second purpose is to write is creativity, to instigate creativity among the students, and the third person is actually brainstorming or pleasure. We also write for the sake of pleasure. So let's move to so here is the vertical linkage over here. Let's go to the brainstorming session. So here is the brainstorming prompt. Have you ever written just for fun without worrying about being correct? So most of the time when students write about something, they are very much worried about the grammar, the punctuation, the spellings. So students, is there any time when you write without worrying about all this stuff? You just write because you want to write. You just write for the sake of pleasure. Yes, students, is there anyone who have experienced such type of thing? Yes, from any school, from any student. क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसने कभी खुद से सिर्फ इसलिए लिखा हो कि बस मुझे लिखना अच्छा लग रहा है? आपने कोई टू डू लिस्ट बनाई हो, कोई टाइम टेबल बनाया हो? बहुत अच्छे. There are many hands which are raised up. It means that some of you have experienced this thing, some of you have experienced the pleasure of the writing. So let's go further. So most of the time students, we write for the sake of pleasure, we write because we want to write, we write just for the sake of entertainment as well. So let's go further. Here is the purpose. So why we write? Writing is very much important. Like the oral communication skills, like the reading, writing is also very important competency, and we write for the different purposes. Most of the time the oral communications are held in the written manner, so that's why writing is very important. Now, writing have different purposes, but there our SLO is presenting three main purposes and which are listed there. The first purpose of writing to gain fluency. तो हम क्यों लिखते हैं? ताकि हमें लिखना आ जाए, ताकि हम लिखते में फ्लुएंट हो जाएं. जैसे बोलने में कोई फ्लुएंट हो जाता है, इसी तरह लिखने में, इन फॉर द सेक ऑफ राइटिंग फ्लुएंसी वी हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. For pleasure or entertainment, we also can write for the sake of pleasure or for the sake of entertainment. Like someone is writing a diary or someone is writing a character sketch. Character sketch means draw a character of someone with the help of words, not actually exactly sketching. Sketching with the help of words is actually considered as a character sketch. तो हम खुशी हासिल करने के लिए या महजूज होने के लिए भी लिखते हैं. और तीसरी वजह क्या हो सकती है? फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड क्रिएटिविटी, कि आप इसलिए लिखें ताकि आप अपनी क्रिएटिव जो फैकल्टी है, जो आपकी क्रिएटिव स्किल्स हैं, उनको बढ़ा सकें. देयर हैज टू बी अ टच ऑफ क्रिएटिविटी इन योर राइटिंग. मतलब अक्सर औकात बच्चे जो कहते हैं कि हमें लिखना आता है, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ याद करके लिखते हैं, वो क्रिएटिविटी प्रैक्टिस नहीं करते. तो लिखने का बुनियादी मकसद ये है, पैराग्राफ राइटिंग का बुनियादी मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी सिखाई जाए, स्टूडेंट्स खुद से सोच के खुद तख्लीक कर सकें लफ्ज़ों को, फिक्रों को और पैराग्राफ्स को. सो देयर आर द थ्री मेन पर्पसेस व्हिच वी हैव टू लुक एट टुडे. Let's go further. Here is the paragraph writing. So students, is there anybody who know how to write a paragraph, or what is the main structure of a paragraph? Because in some previous lectures many of you have learned about the paragraph writings. Yes students, is there anybody who know what is the basic structure of paragraph?
Yes, students. Anybody from any school? One student from Little Stars. Yes, students. Sir, Nobody? topics and tense for introduction, sporting details and conclusion. बहुत अच्छे बेटा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पैराग्राफ राइटिंग है, जो एक पैराग्राफ है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कोई भी पैराग्राफ किसी भी तरह का, उसमें बुनियादी तौर पे कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से। पहला हिस्सा क्या है? टॉपिक सेंटेंस। दूसरा हिस्सा क्या है? सपोर्टिंग सेंटेंस। एंड तीसरा हिस्सा क्या है? कंक्लूडिंग सेंटेंस। जो पैराग्राफ है वो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है। लाइक द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड likewise a paragraph is actually a group of sentences, but there are only 3 types of sentences which occurs in a paragraph. इन 3 के अलावा किसी तरह का कोई चौथा फिक्रा पैराग्राफ में कभी नहीं आएगा। अगर आया है, इसका मतलब है आपके पैराग्राफ का ऑर्डर, आपके पैराग्राफ का लॉजिकल ऑर्डर खराब हो रहा है। तो वो 3 तरह के सेंटेंसेस कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द टॉपिक सेंटेंस, second one are the supporting sentences, and third one concluding sentence. So there are only 3 types of sentences which occurs in a paragraph. So what is meant by a topic sentence and why we write topic sentence? What is meant by supporting sentences and why we write supporting sentences, and what is meant by the concluding sentence? So here is the burger approach of paragraph writing. Like in a burger there are actually 2 bun. One is at the start and one is at the, we can say that the bottom part. So जो 2 बन है ये क्या है? पहला बन है आपका इंट्रोडक्टरी या टॉपिक सेंटेंस और लास्ट बन क्या है? कंक्लूजन। और दरमियान की जितनी चीजें हैं वो क्या है? वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं। तो टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? ऐसा जो आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाए, ये बताए कि आप एक टॉपिक को कैसे लेंगे। लेट्स सपोज वी हैव अ टॉपिक और हमारे पास टॉपिक क्या है? करप्शन। अब करप्शन के ऊपर आप थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ वेज में लिख सकते हैं, लेकिन जो पैराग्राफ होता है उसमें हमारे पास बड़े लिमिटेड सा वर्ड काउंट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 100 या 80 वर्ड्स से स्टार्ट होके 150 वर्ड्स तक पैराग्राफ्स जाते हैं, जो शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं। तो इतने कम वर्ड्स के अंदर हम करप्शन के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सब कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रूल है कि 1 पैराग्राफ 1 आइडिया। ईच पैराग्राफ हैज टू प्रेजेंट 1 सिंगल आइडिया। दैट्स व्हाई in a paragraph there has to be a single idea on which that paragraph is crafted. So what we have to do, we have a topic corruption. अब करप्शन के ऊपर एक बच्चा कहता है कि इसके नुकसानात के ऊपर बात की जा सकती है, कोई क्या कहता है? इफेक्ट्स ऑफ करप्शन पे बात की जा सकती है, कोई कहता है रीजंस ऑफ करप्शन पे बात की जा सकती है, कोई ये कहता है कि करप्शन है क्या या किस किस तरह से हो सकती है, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब ये तीनों बातें ठीक है, यानी करप्शन के बारे में जो ये बता रहा है कि उसके इफेक्ट्स के बारे में पैराग्राफ लिखा जाना चाहिए वो भी ठीक है, जो ये कह रहा है उसकी कॉजेस के बारे में पैराग्राफ लिखा जाना चाहिए वो भी ठीक है, जो ये कह रहा है कि वेज ऑफ करप्शन, करप्शन कैसे कैसे की जा सकती है या वो है क्या, उसके ऊपर बात की जानी चाहिए। तो तीनों बातें ठीक है, लेकिन अगर हम इन तीनों को एक पैराग्राफ के अंदर डालेंगे तो हमारी ये जो वर्ड लिमिट है वो एक्सीड कर जाएगी, वो बढ़ जाएगी, वो उतनी नहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, हम एक ऐसा फिक्रा लिखेंगे जिस फिक्रे से वाजे हो जाए कि वो जो टॉपिक है करप्शन, उसके ऊपर हम किस एंगल से लिखने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक करप्शन है इसके बारे में जो हमारा पैराग्राफ है वो किस तरफ जाएगा, वो किस एस्पेक्ट को एड्रेस करेगा या उसकी बाउंड्रीज क्या होंगी। तो जो हमारा टॉपिक सेंटेंस है ये एक कंट्रोलिंग सेंटेंस के तौर पे भी काम करता है, यानी कंट्रोलिंग सेंटेंस का मतलब है वो कंट्रोल करेगा हमारे आइडिया को कि हमारा आइडिया या हमारा पैराग्राफ सिर्फ इफेक्ट्स तक मुबनी होगा या सिर्फ कॉजेस तक रहेगा या वेज ऑफ करप्शन तक लिमिटेड रहेगा। तो आमतौर पे जो हमारा टॉपिक सेंटेंस होता है वो क्या करता है? वो हमें ये बताता है कि हमारा जो पैराग्राफ है जो हम लिखने वाले हैं वो किस चीज के मुताल्लिक होगा। सो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर व्हाट इज मेंट बाय अ टॉपिक सेंटेंस?
टॉपिक सेंटेंस एग्जैक्टली हमारे स्टांस को वाजे करता है कि हम एक पैराग्राफ के बारे में, एक टॉपिक के ऊपर किस एंगल से लिखने वाले हैं या क्या लिखने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक सेंटेंस है वो क्या होना चाहिए? कोई भी ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कोई भी ऐसा थॉट, कोई भी ऐसा आइडिया जिसको क्या किया जा सकता है, जिसको एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर पेश किया जा सकता है, वो क्या बन सकता है? वो एक टॉपिक सेंटेंस बन सकता है। तो एनी थॉट which can be presented in a declarative sentence can be a topic sentence of a paragraph. So let's suppose अगर आप इफेक्ट से मुतालिक एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखते हैं, अगर आप कॉज के हवाले से एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखते हैं, या वेज ऑफ करप्शन के हवाले से एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? आपका टॉपिक सेंटेंस बन जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, तो वो जो एक स्टांस, वो जो एक आइडिया, वो जो एक स्टैंड पॉइंट आपने बनाया है किसके बारे में? उस टॉपिक करप्शन के बारे में, कि मेरा ये जो पैराग्राफ है वो करप्शन के ऊपर इस एंगल से बात करेगा। उस स्टांस को, उस आइडिया को, उस बिलीफ को जिसको आपने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट किया है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करना पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, विद द हेल्प ऑफ सम डिटेल्स, सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, आपको कुछ भी करना पड़ेगा ताकि क्या कर सकें? ताकि आप उसके लिए अपने उस स्टांस को, अपने उस आइडिया को वाजे कर सकें। लेट्स सपोज वी मेक अ टॉपिक सेंटेंस ऑन द करप्शन दैट करप्शन इज नॉट taking some bribery or money for doing wrong. It's also a form of corruption to not to do your work properly. So here is our stance that we make a stance that कि करप्शन फकत ये नहीं है कि आप किसी गलत काम करें या कोई गलत काम करने के पैसे लें, ठीक है? करप्शन ये भी है कि आप अपना काम ईमानदारी से ना करें, जो काम आपके जिम्मे है आप उसको प्रॉपरली ना करें। इट कैन बी अ स्टांस। अब हमने ये स्टांस बना लिया, वी मेक एन आइडिया एंड अकॉर्डिंग टू दैट आइडिया वी विल गो विद आवर पैराग्राफ। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रूव आवर स्टांस विद द हेल्प ऑफ सम आर्ग्यूमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, विद द हेल्प ऑफ सम लॉजिक। तो वो तमाम लॉजिक, वो तमाम एग्जाम्पल्स, वो तमाम हम कह सकते हैं कि बातें जो हम करेंगे इसलिए अपने स्टांस को प्रूव कर सकें, वो क्या कहलाएंगी? वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहलाएंगे, वो सपोर्टिंग डिटेल्स कहलाएंगे। लेट्स सपोज कोई एक बच्चा है वो ये कहता है कि देखें, अगर एक डॉक्टर है उसका काम क्या है? टू ट्रीट दी पेशेंट्स, और उसके पास एक इंतहाई हंगामी हालात में एक पेशेंट आता है और वो डॉक्टर क्या करता है? वो अपने काम को छोड़ के एक बर्गर खाता रहता है, और वो जो इमरजेंसी वार्ड में पड़ा पेशेंट है वो दम तोड़ जाता है। तो डॉक्टर ने रिश्वत नहीं ली, डॉक्टर ने अपने जो इख्तियारात थे उनका गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि डॉक्टर ने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। तो इट कैन बी अ करप्शन, इट इज एक्चुअली अ वे ऑफ करप्शन। तो हमारा स्टांस इससे क्या हुआ? प्रूव हुआ। तो हमने एग्जाम्पल लिख दी, हमने कोई फैक्ट एंड फिगर लिख दिया, या हमने किसी को कोट कर दिया कि देखें फलां रिपोर्ट में या फलां स्कॉलर ने या फलां किताब में भी यही बात लिखी है जो मेरे स्टांस के साथ एग्री कर रही है। सो ऑल द एग्जाम्पल्स, all the details, all the arguments जो हम किस लिए लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि हमारा जो टॉपिक सेंटेंस में जो हमने एक स्टांस बनाया है उसको प्रूव कर सकें, उसको सेकंड कर सकें, उसको वैलिडेट कर सकें। वो क्या कहलाती हैं? वो सपोर्टिंग डिटेल्स कहलाती हैं। और इसमें आपने ख्याल क्या करना होता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है उसको सबसे ऊपर, और जो सबसे आप समझ लें कि आपको लगता है कि थोड़ी हल्की एग्जांपल है उसको सबसे नीचे। तो आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना। यू हैव टू फॉलो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल comes firstly and then the second one, then the third one, then the fourth one। और इसमें आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ट्रांजिशनल वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आप फर्स्टली कह सकते हैं, आप सेकेंडली कह सकते हैं, ताकि आपके पैराग्राफ के अंदर एक ऑर्डर क्रिएट रहे। नाउ here is the time to make a conclusion। जब आपने अपना एक टॉपिक सेंटेंस बनाया, you have to make an idea and you do so। You make an idea and then you give some details, you write some topic, we can say that the supportive sentences,
and now you think that your stance is proven, your idea, your stance, your thought is proven with the help of the examples in the light of the arguments. Now what's the time? It's time to close your paragraph and with a strong conclusion. अब ये जो conclusion है ये एक उस मैनर में लिखा जाएगा जिस मैनर में हम मैथ के अंदर लिखते हैं कि hence proved, यानी conclusion लफ्ज निकला है क्लिंचर से, यानी किसी बंद करने की चीज को क्लिंचर बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, नाउ यू हैव टू सीमेंट योर पैराग्राफ। आपका सब जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो आपके टॉपिक सेंटेंस की एक तरह से रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन एक मोर डिक्लेरेटिव मैनर के अंदर। सो दिस इज हाउ द पैराग्राफ वर्क्स एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। और आप एक ही आइडिया के ऊपर मैनी पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। लेट्स सपोज आप कोई ऐसा टॉपिक सेंटेंस भी बना सकते हैं कि जिसमें आप इफेक्ट्स ऑफ करप्शन की भी बात कर लें, आप कॉजेज ऑफ करप्शन की भी बात कर लें, आप वेज ऑफ करप्शन की भी बात कर लें, और तीनों के लिए एक एक अलग से पैराग्राफ बना दें। सो यू कैन राइट multiple paragraphs on a single topic because there are thousands and millions of way of thinking on a same topic, and you can write thousands and millions of paragraphs on a topic because each paragraph carry one main idea, and when we make thousands and millions of ideas on one topic, then we can write multiple paragraphs or thousands and millions of paragraphs on that one topic. So students, I hope you understand what is meant by paragraph writing, what is the structure of paragraph. So is there any question you can ask now? Yes, the Central School. सर ये जो आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं इसकी कोई मखसूस बुक है? आपके पास जो किताब है अगर आप उसे खोल लें उसके पेज 58 के ऊपर यही टॉपिक लिखा है। एक्चुअली लैंग्वेज एंड ग्रामर आर नॉट सेपरेट थिंग्स, ठीक? ये ग्रामर नहीं है, ये राइटिंग है, ठीक है? और हमने क्या करना है, हमने सारी चीजों को मिला के पढ़ना है। हमारी लैंग्वेज एक इंटीग्रेटेड एंटिटी है, डिफरेंट नहीं है। स्पीकिंग लिसनिंग के साथ जुड़ी हुई है और रीडिंग राइटिंग के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए हम इन चीजों को और इन सब को हम फैसिलिटेट किसकी मदद से करते हैं, रेगुलेट किसकी मदद से करते हैं, ग्रामर की मदद से। तो ये सारी चीजें एक ही किताब में दर्ज हैं और एक ही किताब में लिखी हुई हैं। और ये जो पेज 58 है इसके ऊपर दरअसल आपका एक प्रॉम्प्ट लिखा है, जबकि आप पिछले चैप्टर्स में देखें जहां हमने पैराग्राफ राइटिंग पढ़ी थी वहां पे ये सारी डिस्क्रिप्शन दर्ज है। इज दैट क्लियर? सर पैराग्राफ के अंदर 8 लाइन होना कंपलसरी होता है? पैराग्राफ में 8 लाइन होना 8 लाइन होना कंपलसरी होता है? 8 लाइन नहीं, एटलीस्ट 5 लाइंस होनी चाहिए एक पैराग्राफ में। देखें कम से कम, यानी छोटे से छोटा पैराग्राफ 5 लाइंस का हो सकता है। 1 फॉर द टॉपिक सेंटेंस, 3 फॉर द सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड 1 फॉर द कंक्लूजन। इज दैट क्लियर? यानी छोटे से छोटा पैराग्राफ आमतौर पे 50 to 60 वर्ड्स का होता है, जिसमें हर फिक्रा हम कह सकते हैं 8 से 10 वर्ड्स का है, और एक फिक्रा जो है वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, 3 फिक्रे उस टॉपिक को सपोर्ट कर रहे हैं और एक फिक्रा उस टॉपिक को मुकम्मल कर रहा है। और लंबे से लंबा पैराग्राफ 250 वर्ड्स तक जा सकता है। इज दैट क्लियर? अब 8 लाइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑन एन एवरेज एक फिक्रे के अंदर आप 10 से 12 वर्ड्स लिखते हैं। तो जब 10 to 12 वर्ड्स आप एक फिक्रे में लिखेंगे और अगर आप 8 सेंटेंसेस लिखेंगे तो क्या होगा, आपका 100 to 120 वर्ड्स पूरा हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो इसलिए टीचर्स ये कहते हैं कि 8 सेंटेंसेस का पैराग्राफ एटलीस्ट लिखा जाए। यस स्टूडेंट्स, इज देयर एनी क्वेश्चन? क्या आप सबको पैराग्राफ राइटिंग क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। Okay, so let's go further. It's time for the practice. So writing for player, as I have explained that we write for many purposes. We write to expose something, we write to present something, we write to describe something, we write to argue on something. Let's suppose हम describe कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई ये कहता है it is a chair, its color is brown, it has 4 legs, it is made of wood. So what is this? The main purpose is to describe. Someone is describing a chair, describing an object with the help of
writing. While writing, he is describing something. इसी तरह कोई किसी चीज, कोई नैरेटिव सुना सकता है, कोई कहानी सुना सकता है लिख के, या इसलिए भी लिखा जा सकता है कि आप खुश हों, यानी कुछ ऐसा अच्छा लिखें. लेट्स सपोज आप प्लेयर फील कर रहे थे एंड यू वांट टू एक्सप्रेस दैट प्लेयर, यू वांट टू एक्सप्रेस दैट मूवमेंट विच यू आर गोइंग टू एंजॉय और विच यू आर एंजॉयिंग एट सम टाइम. तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं. जैसे किसी चीज को बयान करने के लिए लिखाई इस्तेमाल होती है, ऐसे ही प्लेयर के लिए भी राइटिंग होती है. जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि समवन इज सिटिंग एट अ पॉइंट जहां पे क्या है, जहां पे सनसेट हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि सूरज अभी गुरूब होने वाला है, और वो जो मंजर देखता है उसको वो मंजर बड़ा फैसिनेट करता है, बड़ा अच्छा लगता है. तो वो क्या करता है, वो उसको एक तरह से एलाबोरेट कर देता है, वो उसकी एक सेटिंग बयान करता है, उसका एक उस जगह का एक अक्स खींचता है. किसके जरिए, लफ्जों के जरिए. तो आए पढ़ते हैं कि वो क्या करता है. The sun is setting, casting a warm orange glow over the horizon. I'm sitting on the beach, toes buried in the cool sand, watching the waves crash rhythmically against the shore. The sound is soothing, like the ocean is breathing. Inhale, exhale, each wave rising and falling with calm, predictable motion. I close my eyes and let the breeze brush against my face. It carries the smell of salt, that distant laughter of children, and the faint sound of music from a far off ice cream truck. अब वो मंजर लिख रहा है किसका, एक बीच का, कि सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पे पड़ रही है, जो कहीं दूर से बच्चों के हंसने की आवाज़ें आ रही हैं, किसी आइसक्रीम वाले की आवाज़ आ रही है, जो समुंदर की लहरें हैं वो इस तरह जैसे म्यूज़िक क्रिएट कर रही हैं टकरा के किनारों पे. यानी समवन इज़ फीलिंग प्लेयर, और उसने क्या किया, उस प्लेयर के इजहार के लिए, उस प्लेयर को एंजॉय करने के लिए उसने क्या किया, उसने लिख दिया. तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं. और लिखने का, क्रिएटिविटी का आसान तरीका क्या है कि आप किसी जगह पे गए, आपने उस जगह पे जो एक्सपीरियंस किया आप उसको लिख दें. यू जस्ट हैव टू राइट योर एक्सपीरियंसेस. लिखने का आसान तरीका ये है, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स नहीं लिखते या स्टूडेंट्स को लिखना नहीं आता. तो उसका तरीका क्या है, स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आप कहाँ से लिखना शुरू करें, आप यहाँ से लिखना शुरू करें कि भाई एक जगह आप गए, आपने क्या देखा, क्या सोचा, क्या महसूस किया, जस्ट राइट दैट थिंग. तो उससे क्या होगा, उससे लिखना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा. जैसे लेट्स सपोज अब हमारे पास प्रैक्टिस है, अब हमने क्या करना है, लिखना है. राइट कंटिन्यूअसली फॉर अ सेट पीरियड 5 to 10 minutes. आपने ये नहीं सोचना ग्रामर ठीक है कि नहीं, आपने ये नहीं सोचना पंक्चुएशन ठीक है कि नहीं, आपने इस चीज को बॉदर नहीं करना आप जो लिख रहे हैं वो सही है या नहीं. आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए क्या करना है, लिखना है. किसके ऊपर लिखना है, लेट्स सपोज हियर इज द फर्स्ट प्रॉम्प्ट. राइट अबाउट योर फेवरेट प्लेस एंड व्हाट यू फील व्हेन यू आर देयर. तो आप क्या करें, आप इमेजिन करें कि आपकी कोई फेवरेट प्लेस क्या है. लेट्स सपोज वो फेवरेट प्लेस क्या हो सकती है, वो कोई पार्क हो सकता है, कोई हिल स्टेशन हो सकता है, कोई बीच हो सकता है, कोई स्विमिंग पूल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और आपने क्या करना है, आपने बस टूटे फूटे फिक्रों के अंदर उसके बारे में लिखना है, और आप वहां जाके क्या महसूस करते हैं ये लिखना है. और इट्स योर राइटिंग प्रैक्टिस, ये आपने करनी है. या दूसरा प्रॉम्प्ट क्या है, इमेजिन यू कुड फ्लाई, where would you go and why. So now it's actually the imagination based writing कि आप क्या करेंगे, आप ये सोचें कि आप एक परिंदा हैं, आप उड़ सकते हैं, और अब आप कहां उड़ेंगे, आप क्या करेंगे, आप कहां जाएंगे, सिर्फ उसको लिखो. इसी तरह थर्ड प्रॉम्प्ट क्या है, राइट अबाउट द लास्ट ड्रीम यू रिमेंबर हैविंग, कि आपने वो आखिरी ख्वाब क्या देखा था, क्या याद है आपको उसके बारे में, उसको लिखो. सो स्टूडेंट्स, here are 3 prompts and it's a very fun activity. अपनी नोटबुक्स निकालें और सभी के सभी 5 मिनट के लिए इन तीनों में से जो प्रॉम्प्ट जिसको अच्छा लगता है उसके ऊपर बस लिखें, कंटिन्यूअसली लिखें. यू जस्ट डोंट हैव टू थिंक अबाउट द ग्रामर, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द पंक्चुएशन. व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू राइट बाय योरसेल्फ. आपने खुद लिखना है, खुद से सोच के अपने लफ्जों में. तो जल्दी से जरा कीजिए, फिर आपके इंस्ट्रक्टर इसको चेक करेंगे. सो यू ऑल हैव द 5 minutes एंड यू हैव टू राइट. यस स्टूडेंट्स, ओवर टू यू.
जल्दी से लिखो, शेयर दीज प्रॉम्प्ट्स। जी बच्चों, तो किस किसने लिख लिया है? यू कैन रेज योर हैंड्स। किस किसने ट्राई किया? अपने हाथ खड़े करो। ये बड़े कम स्टूडेंट्स हैं। मैं आप सबके इंस्ट्रक्टर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका काम लिखा जरूर देखें और इनको इनकरेज करें, और जहां पे इनकी हल्की फुल्की मिस्टेक्स हैं इनको गाइड करें कि किस तरह से, क्योंकि यही आगाज है। दिस इज द वे जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, लिखना सीख सकते हैं या लिख सकते हैं। दीज आर वेरी इजी प्रॉम्प्ट्स, और आप कोशिश कीजिएगा कि आप सब इन तीनों प्रॉम्प्ट्स के ऊपर लिखें ताकि आप लोगों की जो राइटिंग स्किल्स हैं वो थोड़े से डेवलप हों। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गो फर्दर। हियर वी हैव अ वर्कशीट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट दिस वर्कशीट। इसमें क्या किया गया है, इसमें एक पूरे का पूरा पैसेज दिया गया है और आपने सिर्फ टॉपिक सेंटेंस चूज करना है। यानी हम रिवर्स मैनर में पैराग्राफ को देखते हैं। यहां पे कुछ टॉपिक सेंटेंस दिए भी गए हैं जिसमें से आपने क्या करना है, किसी एक को चूज करके यहां पे लिखना है कि हाँ, दिस कैन बी appropriate topic sentence for this paragraph. For these supporting the details and this conclusion, this would be the best topic sentence. So this is the worksheet which you have to attempt. This will also increase your skills. Yes students, is there any question? सर इसको थोड़ा जूम कर दें। किसको? इस वर्कशीट को थोड़ा जूम कर दें। मैं zoom कर देता हूं। So here is the zoomed version. Yes students. So students, here is the zoomed version. आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा और आप उसके ऊपर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। करंटली यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट इट। आपको ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा और आफ्टर दी क्लास आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। और ये बड़ी मजे की वर्कशीट है, मतलब एक सिंपल सा पैराग्राफ है और आपने क्या करना है, आपने उस पैराग्राफ के सपोर्टिंग सेंटेंसेस और कंक्लूडिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका जो अप्रोप्रिएट टॉपिक सेंटेंस है उसको चूज करना है। So students, I hope you enjoy the worksheet. Now it's time to introduce the homework which is mentioned in your book. What you have to write? You have to write multiple paragraphs about women empowerment. So here we have a topic, women empowerment, and what you have to do, you have to write मल्टीपल पैराग्राफ्स, मोर देन वन पैराग्राफ्स। जैसे मैंने आपको समझाया कि आप किसी भी एक टॉपिक के ऊपर एक से ज्यादा कई पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट के भी ऊपर आप इस माइंड मैप को यूज करते हुए एक से ज्यादा पैराग्राफ्स लिखेंगे। So students, I hope you understand paragraph writing, how to write multiple paragraphs, what are the purpose of writing. If there are any question, any query, you can ask. Yes students, is there any question? Okay, so thank you very much. Over to the instructors. Ji. Yes, the central school. What's the question? सर होमवर्क दोबारा दिखा दें। होमवर्क आपकी किताब के पेज 58 के ऊपर लिखा है और मैं आपको दोबारा से दिखा भी देता हूं कि इसमें आपने वुमेन राइटिंग के ऊपर क्या करना है, डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखने हैं मुख्तलिफ टॉपिक सेंटेंसेस बना के। सो दिस इज द होमवर्क which is also mentioned at page 58 of your book. Is that clear? Any question? Thank you very much. Allah Hafiz.